Well, in medical sciences, we have heard about injections. What is injection in mathematics? An injection is a function which is 1, 1. That is, if there is a function in which no element of codomain has more than one pre-image, is known as injection. Let's talk about it. We are having a function here a to b. First of all, we must confirm, is it a function? Yes, it is. Because as per the definition of function which we have discussed in the previous session, each and every element of domain has one and only one that we call is a unique image. So you can see here, each and every element of domain of the replacement set has one and only one image in the codomain. No element is left out and each element has exactly one image. Well, this is an injection and this is too an injection. Well, so now we include one more term, that is surjection, because when we need to find the inverse of a function, first of all the function must be invertible. If the function is not invertible, then we cannot inverse it. See, the reciprocal of 0 is not defined, so 0 cannot be reciprocated. So first of all we must know whether the reciprocal exists or not. In the same way here, whether the inverse of function exists or not, that we will confirm first, then we will talk about the inverse, then we will find the inverse. Today we are going to talk about some functions which are not invertible. First of all, we will talk about those functions which are not invertible to make a clear understanding, because from this year onwards CBSE has included more short answer type questions, and in competitive exams a lot of these kind of questions are being asked. Your concept must be clear so that we can answer each and every question related to topic. Let's start it. See, this is a function from a to b, but if I try to define its inverse, that is if I see from b to a, is it a function? No, because of this element has no image if I see from b to a. So this is not a function. Moreover, suppose if it would have like this is a function, this is not 1, 1 and not onto, because it is into. If any of the element is left in the codomain, that is it into. Suppose I remove it, still it has no inverse, because if I talk about the inverse, this element is having two images. So to be invertible, a function must be injective as well as surjective. Surjective means no element of codomain should left over. Each and every element of codomain has at least one pre-image, and injectivity says each element of codomain has exactly one pre-image. Well, now let's talk about this function. If I talk this function from the set of real number to real number, what it says? You know that the square of any real number k is k square. Moreover, the square of minus k square, that is minus k into minus k, that also yields us plus k square. So here this function is not 1, 1. And since it is not 1, 1, so it is not invertible. Mind it. This function is not invertible. Let's talk about one more function, fx is equal to x4. This is the last multiple choice question in our book. Fx is equal to x4. Is it 1, 1 or many 1? Is it into or onto? This is been asked. Well, let's talk about it. X raised to 4. We know that k raised to 4 is plus k raised to 4 and minus k raised to 4 is also same. So here we can find, if I take a particular number, 2 is not equal to 2, minus 2 is not equal to 2, but function of minus 2 is equal to function of 2, because function of minus 2 is minus 2 raised to 4.
and minus 2 raised to 4 is equal to 2 raised to 4 because both gives us plus 16. So 16 is equal to 16. So this function x square, x raised to 4, x raised to 6 or any even power of x will obviously be not 1, 1. If I change the scenario, if I'm not defining this in the set of real numbers, if I define it in the set of natural numbers, let's see what happens. See, if I take in the natural numbers, if k is a natural number, then minus k cannot be a natural number. If 5 is a natural number, then minus 5 cannot be a natural number. So in that case, each and every element will have a unique image. Mind it, the square of 1 will, if I try to write the f in roster form, 1 will be related to, for x is equal to 1, the value of fx is 1. 2, if I put 2, 2 is related to 4. If I put 3, 3 is related to 9. Likewise, this is 1, 1, but still not invertible. Why? Because there are some elements. One is having its pre-image. The square of 1 is 1, then the square of 2 is 4. That means 2, 3, 5, these will not have any pre-images. And if each and every element of codomain is not connected, that means it is not onto. If it is not onto, that means it is not invertible. इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी है कि यहाँ का हर एक एलिमेंट तो एक से रिलेटेड हो और यहाँ भी कोई भी एलिमेंट दो से रिलेटेड ना हो और कोई खाली भी ना हो, यानी कि वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो. इंजेक्टिव मतलब एक से ज्यादा से कोई रिलेटेड ना हो, सर्जेक्टिव यानी यहाँ से कोई भी बाकी ना हो. अगर ये ध्यान से देखें तो नेचुरल से नेचुरल में 1 1 हो गया. इफ आई डिफाइन दिस relation from natural to natural, it is 1 1, but the problem is it is not onto. अब इसको लिखने का तरीका क्या हो, या तो ये लिखें. अब इसके बाद रेंज ऑफ द फंक्शन f. रेंज क्या है? द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स. रेंज इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स. क्या क्या आएगा इसके रेंज में? कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट यूज होंगे? 1, 4, 9, 16, 25. Likewise, the range is not equal to codomain. The range is not equal to codomain. So f is not onto. f is not onto, so f is not invertible. तो कुछ ऐसा कर कमाल कि ये क्या हो जाए? इन्वर्टिबल हो जाए. Let's try it out. If I take this relation from positive real number to positive real number, now surprisingly, without any doubt, it is invertible. That is, it is 1 1. Moreover, it is onto. See how? Now I am having all the positive real numbers. If two positive real number x1 and x2 are not equal, then their squares cannot be equal. If negative were allowed, then it could have happened that the square of two numbers are not equal but their squares are equal. But now I am talking about only positive real numbers. And moreover, every positive number has its square root. Whatever number you take, every number has its square root, means every number in codomain has its pre-image in the domain, so it is onto. So this function, the function was same, fx is equal to x square. When I talk from real to real, it is neither 1 1. 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी वही आ रहा है, +2 का भी वही आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं रहा. ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं रियल से रियल में, क्योंकि यहां पर किसी भी नंबर का स्क्वायर करो वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा नहीं. तो नेगेटिव नंबर्स जितने भी है वो किसी की भी प्री इमेज नहीं है. तो दिस इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू. व्हेन आई टॉक इट natural to natural, it is 1 1. Of course 1 1. Why it is 1 1? Because if two natural numbers are not equal, then their square cannot be equal. But we are not onto, because the elements 2, 3, 5, 6, 7, 8, that is all the non-perfect natural numbers will not have any pre-images. That means they will not have pre-images. That is, the function is not onto.
That means in this case it is not invertible. But if I talk about from positive real number to positive near number, it is 1 1 and onto, and its inverse can be found. We'll talk about finding the inverse in the later session. Right now we are talking about which functions are invertible and which are not, because यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा के आप पता नहीं कर सकते कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं. 3-4 कॉमन क्वेश्चंस हैं पूरी बुक में, 5-7 क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखेंगे एट द एंड ऑफ सेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले से ही हमें पता होता है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं. जैसे ये एक्स स्क्वायर करते ही दिमाग में अच्छा नेगेटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव है, इसका हम लोग नेगेटिव लेते ही नेगेटिव का स्क्वायर भी वही, पॉजिटिव का वही, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है. अच्छा नेगेटिव अलाउ नहीं किए, नेचुरल नंबर ले लिए, कोई बात नहीं, नेचुरल नंबर लेने पे 1 1 की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई. बट अभी भी ऑन टू नहीं है. क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि इन नंबर्स की कोई प्री इमेजेस नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसी से भी रिलेटेड नहीं होंगे, सिर्फ जो परफेक्ट स्क्वायर है वही रिलेटेड होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड नहीं होंगे. अब ये जेड से जेड में कर देते हैं, इंटीजर टू इंटीजर, ओके, बट हम जेड से जेड में करते तो 1 1 भी नहीं रहता. क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर लेता -2 और पॉजिटिव इंटीजर लेता 2, दोनों का स्क्वायर कितना आता 4, तो ये 1 1 भी नहीं है. ऑन टू इसलिए नहीं क्योंकि स्क्वायर में गया बार 1 का स्क्वायर 1, 1 के बाद में सीधा 4 यूज होगा, 4 के बाद में 9. ओनली द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल हैव प्री इमेजेस. जब बात करें x की पावर 4 की, सेम स्टोरी यहां पर होगी. अब बात करते हैं x क्यूब की. सीधी सी बात है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब कैसा आएगा? नेगेटिव. -k इंटू -k इंटू -k. यानी दो अनइक्वल नंबर्स हैं तो उनका क्यूब अनइक्वल आएगा. दो सेम नंबर है तो उनके दो अलग अलग क्यूब नहीं आएंगे, सेम क्यूब आएगा. 4 तरह से हम लिखते हैं. हम बात करेंगे कैसे 1 1 ऑन टू प्रूव करते हैं. अभी हम सिर्फ ये समझ लें कि स्क्वायर इज नॉट 1 1 ऑन टू, बट क्यूब इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू. अभी और बात करते हैं पहले इनकी, इसको फिर से देखेंगे हम क्यूब को, और जितने भी इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं विल टॉक अबाउट देम लेटर. अब एक फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन से पहले मॉडुलस फंक्शन की बात की जा सकती है, जो कि हमने 11th में काफी पढ़ा. मॉडुलस फंक्शन क्या है? fx is equal to, if the number is positive then the number itself is the answer. That is, for positive numbers जितना y is equal to x, if I take y, fx is y is equal to x, and y is equal to x क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मेकिंग 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स. जब x1 लेंगे तो y भी 1 आएगा, x2 तो y2, x3 तो y3, लाइक दिस. एंड जब x नेगेटिव है, x की वैल्यू 0 से कम है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -x. वही जब x -1 है तो y +1 है, x -2 है तो y +2 है, क्योंकि मॉडुलस लेने पे पॉजिटिव आएगा. y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ये, तो इसका सीधा सा ग्राफ होता है ये विक्ट्री वाला v. अब इसको देखते हैं सीधा सा ही, कोई वही लॉजिक, -5 लूं और +5 लूं. -5 +5. I know that if I take modulus, then what I will get? The modulus of -5 is +5 and the modulus of +5 is also 5. That means this function fx is equal to modulus x is not 1 1. It is not 1 1. अब क्योंकि ग्राफ बनाया है, कोई आपको बुक में भी कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ग्राफ बना के समझा दिया. ये ठीक तरीका है, आपको ग्राफ सीख लेने चाहिए और बहुत आसान है, क्योंकि हम मॉडुलस एक्स, सिग्नम फंक्शन, इन सब के ग्राफ 5th चैप्टर में फिर से डिस्कस करेंगे और बार बार करेंगे. अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ है. वेल, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. ये क्या है? जैसे हमने कल वर्टिकल लाइन टेस्ट किया कि अगर एक वर्टिकल लाइन लें और ऐसे चलें, और वर्टिकल लाइन कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही हो, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना कर रही हो, तो वो कर्व, वो फंक्शन, वो रिलेशन जरूर क्या होगा? फंक्शन होगा. वो कर्व किसका होगा? एक फंक्शन का होगा. अब हॉरिजॉन्टल ले लें. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेने पे वो कर्व को एक ही जगह कट कर रही हो तो वो इन्वर्टिबल है. यहां क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन दो कर्व पे कट कर रही है. वही बात है कहने की कि x की वैल्यू जब -5 ली तब भी y की वैल्यू 5 ही आई, और x की वैल्यू +5 ली तब भी y की वैल्यू उतनी ही आई. यही तो हम कह रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट भी यही कहता है. तो अगर आपको ग्राफ बना के पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टिबल, व्हाट यू विल डू? यू विल डू हॉरिजॉन्टल टेस्ट. अब मान लिया कर्व दे दूं 4, एक ये है,
एक ये है, एक ये कर्व है, और एक कर्व है। इनमें से ये तो फंक्शन ही नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पे फेल हो गया। इनमें से कौन सा इन्वर्टिबल है? तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, इसको मूव किया, कहीं भी कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कट किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार आता है, आप ध्यान रखो। जब भी कभी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यानी लीनियर फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ एक लाइन होगी, और जब लाइन होगी तो उसका स्लोप भले कम ज्यादा हो लेकिन वो कर्व ही नहीं होगी, वो स्ट्रेट होगी। और क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन होने पे ये हमेशा 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 हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करेगी, यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी, यहां मिल जाएगी पैराबोला में। इन दिस कर्व वी विल गेट। इसीलिए जब हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, साइन का जब इनवर्स निकालने की बात करेंगे तो हम -पाई से साइन 0 इज 0 दिस, हम इतना ही कर्व लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां लेते ही ये फेल हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे फेल हो जाता है, वो इन्वर्टिबल ही नहीं रहेगा। यानी x की दो अलग अलग वैल्यू पे y की सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है, इसका मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। विल टॉक अबाउट इट ऑन अ लेटर सेशन इन चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी की बात सीधी सी बात है, बार बार आता है एग्जाम में, कभी लिख देते y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x का इनवर्स निकालो, कभी बोल देते y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 का इनवर्स निकालो, कभी लिख देते हैं 2x माइनस 3/7। वट एवर लीनियर फंक्शन, कभी भी कोई लाइन की इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू अ लीनियर फंक्शन दैट विल ऑलवेज बी 1 1 ऑन 2। कैसे प्रूव करते हैं बाद में बात करेंगे। वैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे पास हो रहा था। अगर कभी कर्व बना हुआ है, मैं कुछ और कर्व बना के दिखाता हूं आपको। तो मॉडुलस x का कर्व कैसा लिया? वैसे मॉडुलस x को हम सीधे कह सकते थे -5 इज नॉट इक्वल टू +5, बट मॉडुलस ऑफ -5 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5। इसका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं मतलब इन्वर्टिबल नहीं है। अब बात करें मॉडुलस फंक्शन की, हमने बात की। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो इसके जो भी इनपुट दो, सिर्फ अगर वो पॉजिटिव इनपुट है, अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर आप इनपुट देते हो तो वो आंसर देता है 1। यानी अगर आपके इस फंक्शन का आंसर 1 आया तो आप कहोगे कि जो भी इनपुट दिया था वो पॉजिटिव था। और अगर कोई नेगेटिव नंबर इनपुट डालते हो, एक्स नेगेटिव है, तो इसके आंसर आता है -1, और 0 देने पे आंसर देता है 0। यानी कम शब्दों में ये सिर्फ साइन बताता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, भले कितना ही बड़ा नंबर हो। अगर मैं बोलूं सिग्नम फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 500 के लिए क्या आएगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है इसलिए 1। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 5 करोड़ 5 कुछ भी ले लें, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। और सिग्नम फंक्शन ऑफ 0.005 भी ले लूं तो भी कितनी आएगी? 1। लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर लिया कुछ भी, तो आंसर कितना आएगा? -1। दिस इज व्हाट वी कॉल सिग्नम फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे ट्रेस होगा? बहुत आसान है। 11th में भी किया, नहीं किया तो अच्छी बात है, अब कर लेते हैं। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगी। ओके, x जब भी पॉजिटिव लूंगा, 1 2 3 4 0 पॉइंट कुछ भी लूंगा, हमेशा y की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, y की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये है y इज इक्वल टू 1। x कितना भी पॉजिटिव कुछ भी लो, नेगेटिव नहीं, x की वैल्यू 0 से ज्यादा ले, x की वैल्यू 0 से ज्यादा लेंगे, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये ज्वाइन कर दिया। ये वाला पॉइंट नहीं क्योंकि 0 पे 0 होती है। और x अगर नेगेटिव लोगे, x की वैल्यू नेगेटिव लेते ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। दिस इज व्हाट वी कॉल सिग्नम फंक्शन। अब बात करते हैं, फंक्शन तो है क्योंकि कहीं भी ये पॉइंट यहां शामिल नहीं है, ये शामिल है और ये शामिल नहीं है। कहीं भी आप फंक्शन तो है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है। यहां पर आपको ये पॉइंट शामिल नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ओनली 1 पॉइंट इज देयर। यहां जाते हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इस कर्व को वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है एक टाइम पे, ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या ये
इन्वर्टिबल है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लो तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना करे। ये तो है, कितने पॉइंट आ गए, अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ये सारे पॉइंट इतने सारे आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, 1 1 नहीं है। वैसे भी बता सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव दो नंबर ले लो, फंक्शन ऑफ 5 लो तो भी कितना आया 1, और फंक्शन ऑफ 55 लो तो भी आया 1, फंक्शन ऑफ 3 लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर इसमें इनपुट देंगे सबका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया, मैनी 1। तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब मॉडुलस एक्स की बात की हमने, सिग्नम फंक्शन की बात की, और पैराबोला टाइप के फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात की। एक और छोटी सी बात जो कि शायद अपनी बुक में नहीं है लेकिन कर ली जाए तो अच्छा है। आप कहोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 1 ऑन 2 नहीं हो पा रहा है अगर सिर्फ पॉजिटिव रियल से पॉजिटिव रियल में चले, लेकिन एक और फंक्शन डिफाइन किया गया, x इंटू मॉडुलस एक्स, बड़ा फंक्शन, और इसकी सीन ऐसा नजर आएगा, इधर ये ऐसा पैराबोला और इधर ऐसा पैराबोला। क्यों? क्योंकि x 0 लेते हैं तो 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0 लेने पे वैल्यू 0 आएगी। अब पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेने पे x इंटू मॉडुलस ऑफ x विल बी पॉजिटिव x, दिस विल गिव x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का घर वैसा ही होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव x पे, नेगेटिव वाला नहीं बनाया। अब x नेगेटिव लिया तो क्या सीन आया, x इंटू मॉडुलस ऑफ x की जगह लिखेंगे माइनस एक्स, x इंटू माइनस एक्स, एक्स के नेगेटिव होने पे मॉडुलस x की जगह माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है। तो जब x नेगेटिव है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू नेगेटिव है माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि इन्वर्टिबल है। See the horizontal line test. Horizontal line is intersecting this curve exactly at 1 point, not more than 1 point at any instance. That means this is an invertible function. So this is how we talk about non-invertible functions. हमने कुछ non-invertible function लेके समझने की कोशिश की। अब invertible functions कौन कौन से हैं, आपको सीधे कम शब्दों में बताएं। लीनियर फंक्शन सारे, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इसको ऐसे ना लिखे 4 माइनस 3x, 3x माइनस 4, 7 माइनस 3x अपॉन 2, whatever. These all linear functions are always 1 1 on 2, और 1 1 on 2 प्रूव करने का तरीका बहुत आसान है। हम 4 तरीकों से 1 1 प्रूव करते हैं। हम ये मानते हैं कि x1 और x2 अलग अलग है, x1 is not equal to x2, then fx1 भी fx2 से अलग होगा। मैं लेके चलता हूं कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो फाइनली पता लगता है fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग है। मैंने सेम लिया, मैं कहूं दो सेम एलिमेंट लूं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग इमेज आएगी, वो भी सेम आएंगे। यानी ये कैसा आएगा, अगर सेम लिया तो ये भी क्या आएगा, सेम। या उल्टा चलता हूं, मैंने ऐसा लिया कि उसकी इमेजेस सेम है, fx1 fx2 के इक्वल है। इमेजेस अगर सेम है कि नहीं दो नंबर की, तो पता लगेगा वो दो नंबर भी खुद x1 भी x2 के इक्वल आ गया। या मैं कहूं दो अलग अलग एलिमेंट है यहाँ, तो ये गारंटी है ऐसे चलते चलते यहाँ आएंगे कि वो एलिमेंट भी अलग अलग है। यानी नो टू एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम इमेज, या कम शब्दों में कहें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। ये लाइन लिखनी होती है, एक सिस्टम है, 4 तरह से लिखा जाता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा जाने के कारण हमें लगता है क्या हो रहा है, और कुछ एक क्वेश्चन को ग्राफिकली, इवन हमारी टेक्स्ट बुक में भी कुछ एक क्वेश्चन का ग्राफ बना के बहुत इजी स्टेप, यस यस, स्टेप फंक्शन वी मस्ट टॉक अबाउट, दैट इज व्हाट वी कॉल जिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Well, f(x) is equal to greatest integer less than or equal to x. यह है फंक्शन greatest integer less than or equal to x. वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो x से छोटा हो या x के इक्वल हो। जैसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 पूछूं
तो आंसर खुद 5 आएगा, बिकॉज वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो इसके इक्वल हो 5 खुद। अगर मैं पूछूं f ऑफ 4.9 दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.9 एंड दैट यील्ड्स अस 4, क्यों? इट इज नॉट राउंडिंग अप राउंडिंग डाउन। इस बात का ध्यान दें कैसे हुआ। अगर मैं इस नंबर को 4.9 को, दिस इज 1, say this is 1 2 3 4 5, if I trace 4.9 here, वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो इसके बराबर है, दिस इज नॉट इंटीजर। बहुत सारे इंटीजर है, 1 है 2 है, इससे छोटे, लेकिन इसमें से वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो इसके इक्वल है इससे छोटा है, इससे बड़ा इंटीजर नहीं चाहिए, वो बड़े से बड़ा इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू दिस नंबर और लेस देन। कम शब्दों में अगर वो खुद इंटीजर है तो वही आंसर लिख दो, अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे उससे पिछला इंटीजर, नंबर लाइन पर उससे पिछला इंटीजर। यानी 4.1 के मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 4, क्योंकि 4.1 से पिछला इंटीजर कौन था? 4। 4.001 पे भी क्या आएगी? 4। तो हम देख सकते हैं फंक्शन ऑफ 4.1 लोगे तो भी 4 आएगा, फंक्शन ऑफ 4.2 लोगे तो भी 4 आएगा। यानी 4 से 5 के बीच में जितने भी x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में लोगे तो y की वैल्यू 4 ही आएगी। x इज इक्वल टू 4 पे 4 आएगी, और जैसे ही 4.1 सब पे 4 ही चलेगी, y की वैल्यू इतनी 4 ही रहेगी। दिस इज 4, y इज इक्वल टू, यहां भी 4 यहां भी 4। जैसे ही 5 आएगा x इज इक्वल टू जैसे ही 5 आएगा इसकी वैल्यू 4 ना रहकर कितनी हो जाएगी? 5। फिर ऐसे, फिर जैसे ही 6 आएगा इसकी वैल्यू ऐसे। दिस इज हाउ स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको, ये सीढ़ियां बन जाती है। तो सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल हो गई, या हजारों पॉइंट आ गए इस लाइन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए, लेकिन जब यहां लाइन खींचो इसको भी इससे, यानी सीधी सी बात है 4.1 पे भी वही वैल्यू, 4.2 पे भी वही वैल्यू, 4.3 पे भी वही वैल्यू। इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है। क्योंकि ये फंक्शन 1 नहीं है इसलिए इन्वर्टिबल नहीं है। इसके बाद इस सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन 1 ऑन टू है और उनका इनवर्स कैसे निकाला जाए।